At what age you think you became financially independent? I think it was around 37 years. When did you make your first 1 crore? I think it was. तो अगर मैं बात करूँ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो मैंने 8,000 रुपये की एसआईपी का स्टार्ट किया. कोई फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकती बट इट्स अ स्टार्ट. मैंने उसको बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई किया. मैंने 50%, 100%, 200% तक 6 महीने में उसको मैंने मल्टीप्लाई. 40% मेरा लार्ज कैप हो गया, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल, टोटल हो गया 90%. स्मॉल कैप के लिए मैंने 2 एसआईपी कर. क्यों? क्योंकि आई वांट टू कैप्चर मेजर यूनिवर्स. चार शेयर भी अच्छे मिस हो गए ना तो अल्फा बन नहीं सकते. यूएस वगैरह या बाकी डाइसेस वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप एसआईपी करना चाहें चाइना और यूएस में 2 मार्केट ही बोलूंगा आप. What's the difference between like sectoral fund, thematic fund and कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए यंग इन्वेस्टर को? India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. At what age you think you became financially independent? I think it was around 37 years or so. When I was around 37 years, I can call I was financially free, and I could do whatever I want with my time. And I was not working for money anymore. So I think that was my time. And I'm 40 by the way now. So 37 is what I could say I was comfortable. And when did you make your first 1 crore? How old were you back then? I think it was a good question actually. वो तो when I was early 30s में था. मुझे exact याद नहीं है because we make a lot of hue and cry about the 1 crore. I think वो आ जाता है फिर चला जाता है. So it was early 30s. 1 करोड़ तो कुछ होने नहीं वाला है. तो ये सबको पता है अब. तो हमें उसके आगे मूव करना पड़ेगा. बट हाँ, it's a number, it's a benchmark. So early 30s. So let's talk about financial independence. तो आपने बताया कि आप 37 की उम्र में आपने financial independence हासिल किया. ये वीडियो अभी उन सब के लिए जिनको let's say financially independent बनना है and they want to start investing in mutual funds or stock markets as well. So step by step framework अपन discuss करते हैं in order to let's say become financially independent from your own journey. And then let's try to deep dive into all the stages or all the phases of becoming like a good person when it comes to personal finances. So if I ask you simple, तो अगर किसी को financial independent बनना है आज के डेट में, क्या step by step framework होना चाहिए या तो क्या personal finance के rules follow करने चाहिए? And then let's deep dive into each of the phases or stages. Okay. I think that's a wonderful thing because wonderful question instead because इसमें काफ़ी कुछ मैं बताऊंगा जो मैंने करा और क्या मेरे लिए वर्क करा और शायद ये दूसरों के लिए भी वर्क कर सकता है. तो ऑन द कॉन्ट्ररी बिलीव जो है वर्ल्ड में कि सबसे पहले पैसा आया और एसआईपी और म्यूचुअल फंड कर दो, मैं उस बिलीव से 100% कंकर नहीं करता हूँ. तो मेरी जर्नी को देखें तो मेरे सबसे पहले मैं 18-20 साल का हुआ, मेरे पापा ने पीपीएफ स्टार्ट कर दिया. मैंने 24 साल की उम्र में अपनी जॉब स्टार्ट करी तो पीपीएफ स्टार्ट हो गया. स्टार्टिंग में ही पीपीएफ अकाउंट बन गया. सब फैमिली में ऐसा ही होता है. मेरी पूरी फैमिली में ऐसा है. जब भी हम 18 से 20 साल की उम्र होती है पापा सबका पीपीएफ अकाउंट खोल देते हैं. थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, पूरा नहीं डालते हैं, बाकी बाद में आप खुद डालिए. तो पीपीएफ था. पीपीएफ के बाद मैंने एक बहुत आई थिंक मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट इसको कहूँगा, मैंने कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स लिए. और ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स काफ़ी यूनिक हैं और ये आजकल आते नहीं तो लोगों को शायद कम पता हो. ये मुझे 12% का प्री टैक्स रिटर्न देते हैं. 12% का प्री टैक्स रिटर्न जो हम म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करते हैं. राइट, दैट इज द बेंचमार्क रिटर्न दैट एवरीबडी कंसीडर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल. आप जो प्री टैक्स बोल रहे हो पोस्ट टैक्स भी सेम ही होगा राइट, बिकॉज टैक्स फ्री आपने बताया. हाँ, तो मेरे को नहीं है प्री टैक्स 12%, मुझे मिलता 9% है. बट मैं प्री टैक्स इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए वो 9% है. बट अगर मैं कोई और इन्वेस्टमेंट करता जिसमें मुझे 12% मिलता, 30-35% टैक्स लगता, तो मेरे को 9% आता. तो प्री टैक्स वो 12% आप कह सकते हो उसको. तो मोटा मोटी मुझे वो 9% टैक्स रिटर्न देते हैं हर साल. मेरे पास वो अमाउंट एक डेट को फिक्स क्रेडिट हो जाता है. तो मेरे बिकॉज मैंने ये चीजें इन्वेस्ट करी पहले, तो मेरे म्यूचुअल फंड सक्सेसफुल हो पाए. एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन. देखिए आजकल क्या हो रहा है, लास्ट मंथ कुछ 30,000 करोड़ के एसआईपी है. ठीक है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स जा रहे हैं. अगर मुझे नंबर सही से याद है तो कुछ 65 लाख नए इन्वेस्टर आए
और 49 लाख ओल्ड इन्वेस्टर्स चले गए। ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने 1-2 साल 3 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करा है और सबके नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं या 2-4% रिटर्न आ रहा होगा, वो बाहर निकल गए। ये जो लेवरेज मुझे मिला मेरे डेट का, मैंने इसे डेट पीपीएफ हो गया, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हो गए या टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो गए, इसके चलते मेरे म्यूचुअल फंड कामयाब हुए क्योंकि मुझे उनको दोबारा कभी देखना नहीं पड़ा। तो जो भी सोचते हैं, देखिए मैं कहूँगा जो भी पहली इनकम आई है, देखिए 2-4-6 महीने जो आपको मन कर रहा है करिए। जाके थोड़े पैसे खर्च कर लीजिए, मज़ा है, पैसे कमाए आपने मेहनत की है। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट करिए, देखिए एसआईपी बुरी चीज़ नहीं है बट एसआईपी आपको शुरू कर देनी चाहिए जल्दी से जल्दी, बट उसके साथ में थोड़ा कुशन रखिए, कहीं और भी इन्वेस्ट करिए। 2-4-5 लाख रुपए जब आपके पास हो जाए कहीं और, फिर आप सेफ हैं। देखिए लोग इसको अलग नाम देते हैं, इमरजेंसी फंड बोलते हैं, लोग कहते हैं आप इसको सेफ्टी फंड कह लीजिए, आप जो भी नाम दे दीजिए, इट्स योर बफर फंड जो आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ जाए फैमिली में, सब कुछ होता है। देखिए आजकल क्या चल रहा है, वॉर का सिनेरियो, कभी भी कुछ हो सकता है, मार्केट हर दिन आधा 1% गिर रही है। तो इस सिचुएशन में ये आपको फंड बहुत काम आता है और फिर आप एसआईपी को जाके तोड़ेंगे नहीं। चलो 30% गिर गया, आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू इट, आई विल ऐड मोर मनी टू इट। मुझे पता है कि 5 साल में ये बहुत ऊपर जाएगा। देखिए अगर इंडिया में पैसा कमाना है ना, तो आपको इक्विटी मार्केट में उतरना पड़ेगा, या तो अपना धंधा शुरू कर लीजिए, ठीक है, या किसी धंधे में इन्वेस्ट कर लीजिए। हाउ डू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, कैसे करेंगे आप? जाके आप स्टॉक्स खरीदेंगे या आप इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड में। तो नंबर 1 फंडा है, थोड़ा बेस बनाइए, एसआईपी स्टार्ट करिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एंड आई वाज लकी इन दैट एस्पेक्ट। मेरी फैमिली में ना कोई भी इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। देखिए मैं बहुत लकी कह रहा हूँ। हर एक फैमिली में मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मैं जितने लोगों को हेल्प किया फाइनेंशियल प्लान बनाने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि उनकी फैमिली या उनका कोई रिश्तेदार है जो इंश्योरेंस एजेंट है। शुरू-शुरू में उनको एक चिपका दिया गया इंश्योरेंस प्लान, 1, 2, 3 वो एलआईसी के जो प्लान है ना, जो अभी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5 साल में इतना पैसा मिलेगा, वो सबसे खराब चीज़ है। देखिए मैंने नाम ले लिया एक कंपनी का, सब कंपनियों के ऐसे प्लान आते हैं। इन प्लान में प्रॉब्लम क्या है? रिटर्न मिलेगा कुछ 5, साढ़े 5, 6% का। आप लंबे टाइम के लिए लॉक इन हो जाएँगे, निकल सकते नहीं हैं। निकलेंगे तो पैसा पूरा भी नहीं मिलेगा, 30, 40, 50% पैसा मिलेगा। तो वो प्लान से दूर रह गया मैं, थैंक गॉड मैं तो कहता हूँ। और लोगों को इन प्लान से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, लाइफ चाहे आपका डिपेंडेंट है नहीं है, मैं कहता हूँ इतने सस्ते भाव में 5, 7, 8 हज़ार रुपए में 1 करोड़ रुपए मिल जाएँगे आपको, कौन देगा? कल को कुछ होता है तो ये ज़रूर लेना चाहिए। उसके साथ-साथ अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लान। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से फंड मिले? अभी उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि मेरे कौन से फंड थे, मैंने कैसे करा। बट कोई भी बेस्ट फंड नहीं है, मैं आपको बता दूं। हिस्ट्री कहती है कि टॉप क्वार्टाइल में कोई भी फंड साल 2 साल सेम नहीं रहता, हर बार चेंज होते हैं। तो हम बेस्ट के लिए क्यों जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट करिए, बेस्ट अपने आप हो जाएगा। आपको पता है वर्स्ट निफ्टी फंड भी ले लीजिए, वर्स्ट निफ्टी फंड भी ले लीजिए जो कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड होगा, वर्स्ट फंड ने भी आपकी एफडी से ज्यादा रिटर्न दिए होंगे, फिर भी हम बेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो मैंने ना 2009 में अपनी जॉब स्टार्ट करी, 2 से 3 साल बाद अपनी एसआईपी स्टार्ट करी। मैंने एसआईपी करी नहीं। पहली एसआईपी मेरी 2012-13 में हुई, 8,000 रुपए की एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड। दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, 8,000 रुपीज। आई कुड हैव डन मोर। मेरे पास ज्यादा पैसे थे उस समय। मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था अपनी कंपनी में, काफी ग्रो कर रहा था। मतलब मुझे याद है कि मैं शुरू के 2-3 सालों में 3 प्रमोशन लिया था मैंने और काफी अच्छा ऊपर चला गया था। बट मैं आई वांटेड टू टेस्ट द वाटर्स। एसआईपी काम करता है क्योंकि उस समय ना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी म्यूचुअल फंड की लोगों को नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूँ। चाइना में जो म्यूचुअल फंड है, 90% म्यूचुअल फंड चाइना में सिर्फ इनकम डेट सेगमेंट में, वहां पे कोई एसआईपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में एसआईपी का कॉन्सेप्ट है जो कि चाइना कॉपी करना चाह रहा है। चाइना में कोई एसआईपी नहीं होती है। लोग अभी भी प्रॉपर्टी में मेजरली पैसा लगाते हैं जो कि काफी डाउन है, और फिर डायरेक्टली इक्विटी में करते हैं। म्यूचुअल फंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है बट लोग कोई एसआईपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है और हम लकी हैं कि हमारे देश को इतना आगे चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो मैंने 8,000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट करा। बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, उससे कोई फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता है, ठीक है, बट इट्स अ स्टार्ट। मैंने डिफरेंट क्या करा, मैंने उसको बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करा। कॉन्सेप्ट है स्टेप अप एसआईपी का जी। स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है, आप हर साल अपनी तनख्वाह के अकॉर्डिंग 5, 10, 15% अमाउंट बढ़ाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसको मल्टीप्लाई करा। मेरे पास मैंने 50%, 100%, 200% तक हर 2-4-6 महीने, 6-6 हर 6-6 महीने में उसको मैंने मल्टीप्लाई करा। जब मुझे समझ आया ये वर्क कर रहा है, देखिए मैंने हिट एंड ट्रायल करा, मेरे लिए काम चल गया, तो मैंने कहा ये वर्क करता है।
तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करना शुरू किया। वो 8 का 15, 20, 25, 30 ऐसे अमाउंट बढ़ता गया, नॉट कि 800 का 1000 बढ़ेगा, 2000 बढ़ेगा। तो वहीं पर मुझे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, क्योंकि फायर का प्रिंसिपल आजकल आया, दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, रिसेंटली आजकल फेमस हो गया है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यूएस में, बट ये इंडिया में अभी फेमस हो गया। हमें तो शुरू से आदत थी पेरेंट्स का रहना है, हम पेरेंट्स का रह रहे थे। स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर जो खर्च करना था कर लिया। उसके बाद मेजर अमाउंट 60, 70, 80% जितना भी कमा रहे थे, या तो म्यूचुअल फंड में, या किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में, या डायरेक्ट स्टॉक्स में। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, म्यूचुअल फंड से पहले जब मैंने अपनी स्टार्टिंग जॉब करी, उसके बाद सबसे पहले मैंने इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगेन मैंने कभी भी कोई पेनी स्टॉक्स वगैरह नहीं लिए, बट बहुत कमाया नहीं उनसे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। 50,000, 1 लाख अगर मैं किसी स्टॉक में डाल रहा हूँ, डबल भी हो गया, तो भी मेरे को 50,000, 1 लाख ही मिले, इससे मेरे कोई करियर या लाइफ चेंज नहीं हुआ। तो मैंने आई टेस्टेड माई वाटर्स इन स्टॉक्स ऑल्सो, और रिटर्न ठीक ठाक मिला, बट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिला। बट मुझे समझ आया कि इक्विटी मार्केट चलती है, फिर मैंने म्यूचुअल फंड का रूट चूज करा। तो म्यूचुअल फंड के रूट में अभी आपने बताया कि आपने 8000 पर मंथ से एसआईपी शुरू की थी 2012-13 में, एंड ये आपने बताया स्टेप अप एसआईपी के थ्रू इंक्रीज किया। तो आपने कैसे कैसे इंक्रीज किया एंड कैसे ये एसआईपी की अमाउंट्स बढ़ती गई ओवर द नेक्स्ट 13 इयर्स? तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड को सिंपल रखना सबसे सही तरीका है। अगर मैं म्यूचुअल फंड को भी कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं तो क्या फायदा है, फिर तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट ही कर लेता हूं स्टॉक में जाकर। तो सबसे सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड को सिंपल रखना। मैं बहुत ज्यादा देखिए, बाजार में बहुत कॉम्प्लिकेशन, फैक्टर इन्वेस्ट, मोमेंटम, लो वॉलिटिलिटी, ग्रोथ, वैल्यू, अगर मुझे ये सब करना है तो मैं डायरेक्टली स्टॉक्स लूंगा ना, फिर इतना दिमाग यहाँ लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 3 कैप्स में डिवाइड कर दिया, लार्ज, मिड और स्मॉल। 40% मेरा टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा लार्ज कैप में जाता है, ठीक है। एंड आपकी व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जो ये सुन रहे हैं और कोई जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या कुछ अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ बेटर करना चाह रहे हैं, वो ये फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट करा, जिसमें मैंने आपको बताया, लार्ज कैप इंडेक्स फंड से, मैंने आज तक बंद नहीं करा है। बट लास्ट कुछ रिसेंट ईयर्स में मैंने उसमें और ऐड करना बंद कर दिया। उसकी जगह मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए आजकल क्या हो रहा है, फ्लेक्सी कैप भी एक डी फैक्टो लार्ज कैप बन गए। उनमें भी बहुत सारा प्रोपोनेंट, 70-80% जो पैसा है वो लार्ज कैप में जा रहा है, और मेरे को थोड़ा अल्फा जनरेट करता है। अल्फा मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे मिल जाता है अगर मैं फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत मिड कैप वगैरह में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो अब मेरा जो लार्ज कैप फंड की नीड्स है वो लार्ज और फ्लेक्सी कैप से मीट होगी। दूसरी जो आता है वो मिड कैप, उसमें मैंने एक फंड रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स नहीं है मार्केट में, उसमें करीब 150-200 स्टॉक्स है मिड कैप में। उसके लिए मैंने एक फंड रखा है, क्योंकि 2-3 रखूंगा तो पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा, सेम ही फंड 2-3 में आ रहे हैं। तो एक अच्छा फंड मिड कैप का, बहुत ध्यान से देख के मैंने एक अच्छा मिड कैप फंड रखा हुआ है। तीसरा आता है स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप एक बड़ा यूनिवर्स है, स्मॉल कैप में बहुत सारे शेयर है, स्मॉल कैप में अच्छा पैसा बन सकता है। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के लिए जो मैं 25% करता हूँ, 40% मेरा लार्ज कैप हो गया, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, टोटल हो गया 90%। स्मॉल कैप के लिए मैंने 2 एसआईपी करी है। क्यों? क्योंकि आई वांट टू कैप्चर मेजर यूनिवर्स। देखिए अगर 2-4 शेयर भी अच्छे मिस हो गए ना स्मॉल कैप में, तो मार्जिन अल्फा बन नहीं सकता है। तो अगर मैं 2-4 शेयर भी, मुझे पता है कि कुछ पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा, कुछ दोनों ही म्यूचुअल फंड में सेम शेयर होंगे, बट जो 2-4-5 स्टॉक मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे अच्छे, अगर मिल गए तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो मैंने 2 स्मॉल कैप करा हुआ है। उसका एक और फायदा है, अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल मिल जाता है मुझे फंड मैनेजर का। देखिए कर तो इंसान ही रहा है, फंड मैनेजर है, तो अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल आई एम एबल टू कैप्चर बाय गोइंग टू 2 डिफरेंट स्मॉल कैप। So that's my 90% of my equity SIPs that I do, and ये इसको मैं छेड़ता नहीं, इसको मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। ये मेरा पैसा बनता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, इसको मैं बस अमाउंट बढ़ाता रहता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास ज़्यादा पैसा आता है, मैं इसको अमाउंट बढ़ाता रहता हूँ। What proportion of salary should people start investing? See, it depends on your age. So if you 21 ईयर ओल्ड है, हाँ, 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो इसको कितना एसआईपी करना चाहिए? अगर वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटी में रहता है, टियर 1। तो आई थिंक 20% से ज़्यादा वो सेव नहीं कर पाएगा। करना चाहिए 30-40%, वो कर नहीं पाएगा। तो 20% इज एन आइडियल नंबर दैट पर्सन स्टार्ट, क्योंकि इंडिया में अब जो परसेंटेज सेविंग्स एवरेज है वो सिंगल डिजिट आ चुका है। मुझे याद है मेरे टाइम पे ये हाई 10s और अर्ली 20s में होता था। आप जब 8000 पर मंथ की एसआईपी करते थे तब आपका क्या इनकम था? पता है मेरी इनकम करीब करीब होनी चाहिए 80,000 रुपए। ओके, या got it.
तो आप बस 10% ही इन्वेस्ट करते थे क्योंकि तभी? मैंने स्टार्ट करा था उस समय, Right. पहली एसआईपी थी, उसके हम्म, मैंने आपको बताया मैंने मल्टीप्लाई करा, मैंने Right. कहा बड़ी 20% बट मैंने एसआईपी बढ़ा दी 50% क्योंकि आई कुड अफोर्ड दैट। सो got it. माय अप्रोच वाज लिटिल डिफरेंट। नाउ आई हैव टेस्टेड द वाटर, आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं मेरा, तो आप क्या करें, ये मुझे समझ आ गया कि चलता है, तो आप वो मत करिए, क्योंकि उस समय किसी को एसआईपी के बारे में पता नहीं था, इंडियन स्टॉक मार्केट में डेवलप नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 2010 11 12 की, 8 में तो क्राइसिस इतना बड़ा आया था, 9 में फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उस समय लोगों को पता नहीं था कि एसआईपी चलेगा, इंडिया इतना ग्रो करेगा। इंडिया बेसिकली चेंज हुआ 2014 के बाद, 2013-14 के बाद जो हमारे इकोनॉमी में काफी चेंज आने शुरू हुए, तो उसके बाद से एक अलग व्हाट यू से पहचान बनी इंडिया की। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक इफ यू हैव टू मेक मनी यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया। एक 10% की और बात करते हैं। मेरा 90% पोर्टफोलियो हुआ, 10% इंटरेस्टिंग है। और वो भी मैं अभी से म्यूचुअल फंड की बात करी है, तो मेरा टोटल पैसा 50% ऑफ माई टोटल मनी इज इनटू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। उसमें से 90% की एसआईपी मैंने आपको बता दी, जो 10% बचा ना, वो मैं डालता हूँ एक बैलेंस एडवांटेज फंड, बैफ कहते हैं। मेरे पास इमरजेंसी फंड में अलग से नहीं रखता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। बट ये बैफ मुझे एक्सपोजर देता है। देखिए, पैसा थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है? पैसा इन्वेस्ट करिए, कमाइए, बट आपने कमाया थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। क्या लॉजिक है? ये बैफ ना मुझे फ्री में पैसा निकालने देता है विदाउट टैक्स। बैफ में 65% पैसा डेट में है, 35% इक्विटी में, तभी ये एज एन इक्विटी टैक्स होता है। मुझे मान लीजिए 4-5 लाख रुपए चाहिए, पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा निकालना चाहिए। 4-5 लाख रुपए चाहिए, 7 लाख रुपए चाहिए, कभी इससे पैसा निकाल लिया, टैक्स भी नहीं लगेगा, जब पैसा आया वापस डाल देंगे। तो ये मैं फॉलो करता हूं इन अ बैफ। अगर मैं जाता एफडी में होता, एफडी तोड़ता, तो जी 30% का टैक्स देना पड़ता, और हर साल मेरा 10% टीडीएस कट रहा है। तो ये मैं बैफ पे प्ले करता हूँ, हमें एक अप्रोच मिलता है, तो इसको मैं बहुत रेयरली करता हूँ, बट जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये बैफ मेरा काम आता है। पैसा सेव भी है। देखिए, 3-4 साल के लिए बैफ अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इक्विटी बैलेंस कर रहा है आपके डेट को, डेट आपको बैलेंस कर रहा है आपकी इक्विटी को। ठीक है, तो ये मेरा टोटल पोर्टफोलियो हो गया इन टर्म्स ऑफ एसआईपी। तो अगर मैं 100% बात करूं, तो 50% मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, जिसकी एसआईपी की बात हमने अभी करी। एंड ऐसे 50 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट दिस कॉम्बिनेशन हैज वर्कड फॉर मी, सिंपल है और मैं ये फॉलो करता हूं। तो आपके एसआईपी, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, तो आपके एसआईपी नंबर्स कैसे इंक्रीज हुए थे? तो यू स्टार्ट विद 8,000 पर मंथ, हाउ डिड यू इंक्रीज इट ओवर द लास्ट 13 years? It grew very very fast. So uh, I I still remember that in 1 year I also doubled my SIP. So फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में तो और डबल करा, अब मुश्किल हो जाता है डबल करना क्योंकि अमाउंट बड़े हो जाते हैं। बट 8,000 का 15,000 करा, 15 का मैंने 25 करा था, राउंड फिगर्स करते चले गए उस समय। तो उस समय मैं परसेंटेज नहीं देख रहा था, मेरे पास जितना पैसा बच रहा था मैं अब मेरे को एसआईपी करना है, क्योंकि मेरे पास एक कुशन था ऑफ पीपीएफ, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, टारगेट मैच्योरिटी, एक छोटा अमाउंट बन गया। ठीक है, और डिसेंट अमाउंट था वो, मतलब उसको मैंने बाद में इंक्रीज भी करा। अब मैं उसको नहीं इंक्रीज करता हूँ, अब मैं उसको इंक्रीज नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे जरूरत नहीं इंक्रीज करने की। ठीक है, मेरा कुछ मोटा 8 से 10%, 8% के करीब मेरा डेट पोर्टफोलियो होगा मुझे, और वो कम होते जा रहा है एज अ परसेंटेज। अमाउंट उतना ही है, बाकी पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो वो अमाउंट कम होते जा रहा है। तो मेरे पास डेट सिर्फ अगर हम कहें तो बैफ के थ्रू है, बट वो भी इक्विटी एंड डेट का मिक्स है। आपका पर्सनल एसेट एलोकेशन क्या होगा अभी एट प्रेजेंट? या सो 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड, 8 से 10% डेट होगा, 15% डायरेक्ट स्टॉक्स, 12 से 15% गोल्ड है, एंड बचा 12 से 15%। दिस इज इंटरेस्टिंग, आई कॉल इट प्ले मनी। अब इसके अलग नाम है, हम इस पे आते हैं। तो ये जो प्ले मनी है, इसके अलग अलग नाम है जी। देखिए, लोग कहते हैं इसको ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा रख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो ड्राई पाउडर हो गया। दूसरा कहते हैं इसको टैक्टिकल एलोकेशन, तीसरा कहते हैं इसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो, अब अलग नाम दे लीजिए। मैं इसको सिर्फ कहता हूँ ये मेरा प्ले मनी है, जहां मुझे लगता है कि मेरा एक्स्ट्रा पैसा अल्फा बन सकता है, मैं डाल देता हूं। मुझे और ये मुझे हेल्प मिला सिल्वर के साथ। सिल्वर में एक टैक्टिकल एलोकेशन की तरह खेलता हूं। मैंने सिल्वर एज अ कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं रखा हुआ, वो मेरा काम करता है गोल्ड। सिल्वर रियली हेल्प मी आउट। पिछले 8 महीने से 1 साल में मुझे सिल्वर से अच्छा रिटर्न मिला है। जब भी मुझे लगा कि सिल्वर का सही टाइम बाय करने का, जब ज्यादा लोग बाय नहीं कर रहे थे, जब ज्यादा बातें नहीं हो रही थी, तो उस समय घुसने का टाइम था, और मैंने अच्छा रिटर्न कमाया और मैं निकल भी गया उससे। आई एम स्टिल होल्डिंग सम सिल्वर, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट होल्ड सिल्वर, बट वो मेरा टैक्टिकल है, मैं बहुत जल्दी इन एंड आउट होता हूँ उससे।
अनलाइक अदर पोर्टफोलियो जो मेरा कोर है उसमें मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, एलोकेशन मेंटेन करता हूँ। हाँ, अभी जैसे गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड बढ़ गया बहुत ज़्यादा, डबल हो गया, तो थोड़ा कम करना पड़ जाता है क्योंकि एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है। बट अगेन 10% था, वो भी 12-15% है, तो चल जाता है 2-4% ऊपर नीचे। तो सिल्वर कितने परसेंट है आपके पोर्टफोलियो में? गोल्ड आपने बताया 12 से 15% है। Silver would be around, and that comes out from the play money, would be around 7-8% currently. ओके, गॉट इट। Hmm. एंड गोल्ड और सिल्वर में आपने बताया था दैट यू ट्रैक गोल्ड टू सिल्वर रेशियो इन ऑर्डर टू डिसाइड कैसे क्या करना है। तो Right. क्या होता है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो एंड कितना होना चाहिए यूजुअली? काफी इंटरेस्टिंग है ये। गोल्ड सिल्वर रेशियो शुड बी अराउंड 60s। हिस्टोरिकल एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 1-2 साल से कह रहा था जब सिल्वर में ग्रोथ नहीं आई थी, और ये बहुत सारी वीडियोस में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये 100 के पार चला गया, 100 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस ऑफ गोल्ड बाय प्राइस ऑफ सिल्वर? प्राइस ऑफ गोल्ड बाय प्राइस ऑफ सिल्वर सेम ग्राम में ले आइए। ओके। तो अगर आप, क्योंकि गोल्ड जनरली हम 10 ग्राम में देखते हैं और सिल्वर हम 1000 किलो के हिसाब से देखते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो सेम ग्राम पे अगर ले आएंगे तो आपको पता लगेगा कितना गोल्ड कितना सिल्वर बाय कर पा रहा है, कितना सिल्वर इज इक्वल टू कितना गोल्ड। राइट, ठीक है, अभी क्या चल रहा है ये रेशियो? अभी शुड बी अराउंड 70s में, क्योंकि अगर आप देख लीजिए अभी कुछ 2,60,000 रुपए सिल्वर है, 1,60,000 सोना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करिए तो वो मोटा मोटी 70 के करीब आना चाहिए, अगर मैं मैथमेटिक्स सही कर पा रहा तो। हाँ, तो अब थोड़ा सैनिटी आ गई है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर में बहुत ज्यादा तो सिल्वर का उस समय टाइम आ रहा था बाय करने का। अब क्या हुआ है, सिल्वर अचानक से काफी गिर गया, 3-4 दिन में सिल्वर 40% डाउन था स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में, तो सैनिटी आ गई है फिर भी अब। बट मुझे लगता है कि नाउ देयर इज स्टिल इक्वल चांसेस ऑफ द गोइंग अप, बट जब ये 40 आ जाए या 100 आ जाए तो आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेनी चाहिए। देखिए ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं, गोल्ड टू जीडीपी रेशियो है, सॉरी गोल्ड टू निफ्टी रेशियो है। आप देखिए तो ये एमसीएक्स का गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। एक रेशियो आता है जी जो बाहर ट्रैक करते हैं, गोल्ड इन डॉलर्स टू S&P 500। तो अलग अलग रेशियोज हैं। मुझे लगता है कि अगर गोल्ड और सिल्वर में डिसाइड करना है तो गोल्ड और सिल्वर रेशियो अच्छा बेस्ट है। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल बिलीव कि सिल्वर को आप देख के लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत लीजिए, जरूर लीजिए अगर आपको उसकी इंडस्ट्रियल यूज समझ आ रही है तो। बट इंडस्ट्रियल को ज्यादा ना कल से शुरू नहीं हुई, इंडस्ट्रियल बहुत टाइम से हो रही है। कोई 2022 में चैट जीपीटी आया था, कोई आज नहीं आया चैट जीपीटी। तो सिल्वर जितनी ऊपर जाता है जितनी जल्दी ना, उतनी जल्दी नीचे भी आता है। $50 आज तक पार नहीं कर पाया था, अचानक से $120 चला गया, $70 आ गया। आप जाके देखो, टैक्टिकल एलोकेशन का फायदा बताता हूँ मैं आपको। 5 बार सिल्वर पिछले 3 से 4 महीने में, आप चार्ट देखिए सिल्वर का, दिखा सकते हैं बाद में। आप कोई भी एप्लीकेशन में जाके चार्ट देखिए, 70 से $72 पे क्या सपोर्ट मिला है सिल्वर को। 5 से 6 बार सेम लेवल से ऊपर गया है। ट्रेडर ने कितना पैसा कमाया, जहां $70-72, मैं नहीं कह रहा आप जाके 70 पे खरीदिएगा आज, कहीं को 50 आ गया फिर आप, इट इज इजीली पॉसिबल बिकॉज सिल्वर कैन फॉल, जितनी जल्दी बढ़ता है ना उतनी जल्दी गिरता भी है। तो 70-72 पे जो ट्रेड कर रहे हैं, जो टैक्टिकल एलोकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 70-72 पे बाय करते हैं, जहां पे जरा ऊपर गया 20-30-40% निकल गए। तो ऐसे 4-5-6 बार हो गया ये पिछले 3-4 महीने में। सो टैक्टिकल एलोकेशन यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट एंड द टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपने जैसे बताया कि अभी एसआईपी में आप लार्ज कैप प्लस फ्लेक्सी कैप प्लस स्मॉल कैप इसमें इन्वेस्ट करते हो। सो अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो उस पे आपने लास्ट 13 इयर्स में कितना सीएजीआर किया होगा एंड स्टॉक्स में कितना सीएजीआर किया होगा? तो मैंने म्यूचुअल फंड का सीएजी एक्सआईआर बोलूंगा, एसआईपी का, दो इज द राइट मेट्रिक टू मेजर माय एसआईपी रिटर्न, कुछ 16% के अराउंड होना चाहिए, गिव एंड टेक। थोड़ा ये वॉर नीचे अभी आया है तो थोड़ा नीचे आ गया होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो मार्केट डाउन है, बट मैं तो खुश हो रहा हूँ। ऐसे टाइम पे तो वो काम आएगा ना मेरा प्ले मनी, तो इसी तो रखा है उस प्ले मनी को। तो ऐसे टाइम पे धीरे धीरे करके वेट कर रहा हूँ, कुछ और अगर कुछ और हलचल होनी है, कुछ और हफ्ते वेट कर लें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 21,700 का। देखिए अप्रैल 2025 का लो रहा है वो, ठीक है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कुछ 22,000 21,500 का लेवल जो है, वो लेवल मैं नहीं कह रहा हूँ ब्रीच नहीं कर सकता है, बट एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है वो। तो उसके अराउंड कुछ बाइंग आई एम श्योर लोग करेंगे मार्केट। और इसमें जैसे आपने बताया 15% आप प्ले मनी रखते हो, तो अभी जैसे मार्केट में करेक्शन आया है तो यू आर यूजिंग दैट एंड यू आर इन्वेस्टिंग एंड गोइंग हार्डकोर इनटू इक्विटीज? I am right now not doing it, but I am waiting. I am waiting and I am building my play money. तो काम आएगा, कभी थोड़ा अगर डेट से पैसा कभी उठा के डालना है तो डाल देता हूँ अपने प्ले मनी के लिए, बट अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैं आई एम गोइंग स्लो,
क्योंकि ट्रम्प सर का पता नहीं है वो कल कौन से न्यूज़ ले आए, तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ, धीरे-धीरे करके डालूँगा, जल्दी नहीं है मुझे डालने की पैसे। एंड इसमें अभी जैसे म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करते हैं तो अभी कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया और अभी आप जो एसआईपी कर रहे हो तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, कैसे पोर्टफोलियो ब्रेक डाउन किया है? 40% जो हमने लार्ज कैप करा उसमें मेरा एक लार्ज कैप निफ्टी है और फ्लेक्सी कैप है जो मेरा एसआईपी पोर्टफोलियो का 40% है। एंड अब मैं फ्लेक्सी कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा हूँ क्योंकि लार्ज कैप मेरा वहां से मीट हो रहा है। देन आई हैव अ मिड कैप एंड 2 स्मॉल कैप। ये तो मेरा हो गया एसआईपी का पोर्टफोलियो, जिसमें कि बैफ भी मैंने आपको एक बताया था, जो मेरा अगर कोई मीडियम टर्म नीड है तो मैं यूज कर लेता हूँ। 10% ऑफ माई एसआईपीज है। एक लमसम पोर्टफोलियो भी। नाउ लमसम पोर्टफोलियो में अ, एक इंटरनेशनल फंड रखता हूं मैं और एक दो सेक्टोरल फंड रखता हूं। देखिए, ये मैं सबको एडवाइस नहीं करता हूं। ये विद एक्सपीरियंस आपको आएगा और धीरे धीरे इस पे आप आइएगा, बट एसआईपी पोर्टफोलियो सबका होना चाहिए। लमसम पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें टाइमिंग जरूरी हो जाती है, कब एंटर करना है, थोड़ा मैक्रो ट्रेंड आपको पता नहीं होने चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आजकल मैं पहले मैं यूएस पे बुलिश था, आजकल मैं चाइना बुलिश हूँ। तो मैंने एक इंटरनेशनल फंड लिया हुआ है जो कि चाइना बुलिश है, और उसका मैं रीजन भी बात करेंगे। एंड एक दो सेक्टोरल फंड्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी इकोनॉमी के अराउंड और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर बेनिफिट हो सकते हैं, मैंने वो फंड अपने सेक्टोरल फंड में रखे हैं। तो क्या रीज़न है चाइना के फंड लेने का? एंड ये सारे जितने भी फंड्स आपने बताए तो कौन से म्यूचुअल फंड्स है? इफ़ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कैसे सिलेक्ट किया आपने ये म्यूचुअल फंड्स बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन, दैट विल बी हेल्पफुल। श्योर। सो चाइना में अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी गिर गए हैं। कुछ 40 से 50% के बीच में टॉप 4, 5, 6 सिटीज में हम देखें तो प्राइसेस डाउन है। चाइना इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी में डालता है। अब प्रॉपर्टी तो बढ़ नहीं रहा। अ, तो अब वो स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट, जो सरकार कर रही है। पहले बूम एंड बस्ट साइकिल चलता था चाइना में, बहुत ज्यादा पीरियड ऊपर गया चाइना, फिर वो अचानक से नीचे गिरता था, उसको भी कंट्रोल कर रही है चाइनीज। एंड गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्स इंस्टीट्यूशन जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना में एक और चीज हो रही है चाइना के पास, और ये नंबर मैं काफी बार बता चुका हूं, कुछ $24 ट्रिलियन, आई रिपीट $24 ट्रिलियन रिटेल डिपॉजिट में पड़ा है। वो $24 ट्रिलियन, और रिटेल 30 साल पहले देखें तो चाइना में मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेंट थे। आजकल सबसे बड़ा इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है वो इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है। तो चाइना में रिटेल पार्टिसिपेशन कम है अभी। एसआईपी है नहीं, क्योंकि इंडिया की वो चाह रहे हैं एसआईपी कुछ बनाना, बट एसआईपी है नहीं वहां पर। एसआईपी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रेगुलरली पैसा आता नहीं। 90% मैंने आपको बताया पैसा टोटल ऑफ द म्यूचुअल फंड मनी ऑफ चाइना, ऑफ चाइनीज 90% ऑफ द चाइनीज म्यूचुअल फंड मनी वो एक फिक्स्ड इनकम या जिसको हम कहें डेट इन्वेस्टमेंट में रहती है। तो वो $24 ट्रिलियन रिटेल डिपॉजिट है, उसमें से कुछ $8 ट्रिलियन, $7 से $8 ट्रिलियन इस साल मच्योर होने वाला है। वो पैसा इन्वेस्ट करा गया था कुछ 3.5% के ब्याज पे पहले, अभी देखें वो ब्याज 1.2% है। तो जब वो मैच्योर होगा पैसा, तो आपको लगता है 1-1.5% पे वो पैसा बैंक में जाएगा? मैं कहता हूं उसका 10% भी अगर चैनलाइज हो जाए टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट, तो आप खुद देखिए कि कितना अमाउंट बनता है। तो इंडिया की, जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, इंडिया की टोटल मार्केट ही $4-5 ट्रिलियन की है, अब तो नीचे आ रही है। तो कुछ $4 ट्रिलियन की इंडिया की टोटल मार्केट है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ $60 ट्रिलियन तो पैसा आने वाला है, और चाइना की मार्केट कुछ $11-12 ट्रिलियन की होनी चाहिए। सी द क्वांटम ऑफ मनी विच कैन कम इनटू द मार्केट। मैं नहीं कह रहा हूँ सारा पैसा आ जाएगा, बट अगर उसका परसेंटेजेस निकालें तो काफी पैसा आ सकता है। और सरकार चाहती है, द चाइनीज गवर्नमेंट वांट्स दैट देयर शुड बी एन एवेन्यू टू मेक मनी। बैंक में ब्याज मिल नहीं रहा है, प्रॉपर्टी में मिल नहीं रहा है, तो वो इक्विटी मार्केट है। चाइना के मार्केट्स ने कुछ रिटर्न्स दिए ही नहीं थे ना लास्ट 35-40 इयर्स, वो एकदम फ्लैट मार्केट्स थे, राइट? इस साल नहीं दिए, लास्ट ईयर तो चाइना के मार्केट ने परफॉर्म करा है। आप अच्छा, देखें ओके। कोरियन मार्केट ने कुछ 70-75% रिटर्न दिया है। हम्म। इस साल भी काम चल रहा है, ताइवान भी चल रहा है। लास्ट ईयर लास्ट ईयर चाइना के मार्केट ने रिटर्न दिया है। इस साल अगर आप ध्यान से देखें, और अगर जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो कहेंगे कि चाइना में ईटीएफ सेलिंग हो रही थी, तो चाइना में अभी इस साल जानबूझकर अभी मार्केट को वो बूम एंड बस्ट साइकिल ना हो इसलिए कंट्रोल करा गया है, और थोड़ी सेलिंग आई है, और देखने में आ रहा है कि दोबारा से बाइंग धीरे धीरे आ रही है। सो आई थिंक चाइना कैन, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो 2, 4, 6 महीने, साल भर में रिटर्न अगर आप सोच रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो होगा नहीं और आप बेच देंगे। थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रखिए, थोड़ा पैसा को 2-4 साल कम से कम रखिए, मैं तो कहूंगा ज्यादा रखिए,
स्टैटिस्टिक्स कहती है कम से कम 6-7 साल म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में एक साइकिल बनती है। बट अगर इम्पेशेंट है ना, अगर हम बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है हमारे में, तो भी कम से कम 3-4 साल का टाइम तो दीजिए मार्केट को देखने में कि कैसा परफॉर्म करे। इंडेक्स फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन से बेस्ट 2-3 इंडेक्स फंड्स है जो आप रेकमेंड करोगे दैट इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने चाहिए एंड क्यों? अगर आप देखिए 2 इंडेक्स फंड मुझे लगता है कि अगर किसी को इंडेक्स फंड लेना है, तो लो कॉस्ट होते हैं। तो एक तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हैं और एक नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। तो अगले 50 अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं? ठीक है? जो टॉप 50 में नहीं आए उसके नेक्स्ट 50 वो कौन से स्टॉक है? ये 2 फंड अगर आपको प्ले करना है तो नेक्स्ट 50 हिस्ट्री कहती है कि आपको बेटर रिटर्न देता है। अगर अगेन 7, 8, 10 साल का पीरियड देखिए, साल 2 साल में अलग बात है। तो नेक्स्ट थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, थोड़ा ऊपर-नीचे ज़्यादा होगा। अगर आप थोड़ा वॉलेटिलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आपको नेक्स्ट 50 देखना चाहिए। तो एक इंडेक्स लार्ज कैप और लार्ज कैप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। और इंडेक्स फंड्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई एक यंग इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है तो? बहुत मुश्किल है इंडेक्स फंड में एक एक्टिव फंड मैनेजर को बीट करना, एक पैसिव इन्वेस्टर को बीट करना, एक एक्टिव आई रिपीट, बहुत मुश्किल है एक एक्टिव इन्वेस्टर को बीट करना एक पैसिव इन्वेस्टर को इन अ लार्ज कैप इंडेक्स फंड। मैं रिपीट करता हूं, उसका मतलब क्या है कि जब आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना फॉर एन एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप बड़े इंडेक्स की बात करें तो हमें डेफिनेटली इंडेक्स फंड करना एंड यूएस वगैरह या बाकी इंडाइसेस वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या ओवरव्यू होगा? चाहिए। देखिए अगर आप एसआईपी करना चाहें तो आप फिर रेगुलर एसआईपी करती रहिए। चाइना और यूएस में 2 मार्केट ही बोलूंगा, आपको ज्यादा मत जाइए। स्कोप दिख रहा है जापान में भी, एक्सवाइजेड मार्केट में भी। बट अगर आप 2 मार्केट पकड़े, देखिए डेवलप्ड मार्केट ज्यादा है यूएस, तो आप एक रेगुलर एसआईपी कर सकते हैं। या तो उनका कोई ईटीएफ ले लीजिए या कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए। अगेन चाइनीज मार्केट का वहां पे भी 2 हैं, एसएनपी है, नैस्डैक है। आप एसएनपी 500 में कर सकते हैं, बड़े स्टॉक्स का आपको वैरायटी मिलती है और वहां पे आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो 5 से 7% आप एक यूएस इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सेक्टरल फंड्स आपने जो बताया तो इसमें कौन से सेक्टर्स पे आप बुलिश हो एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेट्स से अ सेक्टरल फंड, थीमेटिक फंड एंड कौन से टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एक यंग इन्वेस्टर को? कुशल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए सेक्टोरल फंड सबके लिए नहीं है, मैं तो मना करता हूँ लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मैं तो लोगों को कहता हूँ आप सेक्टोरल फंड मत करिए। अगर आपको मार्केट समझ नहीं आती सेक्टोरल फंड मत करिए। उसके लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, थोड़ा आपको मार्केट के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, थोड़ी थीम्स पता होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि मेरे क्या लॉजिक्स हैं, मैं कैसे करता हूँ। तो मेरे पास जनरली 100 सेक्टोरल फंड होते हैं। थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड में ये फर्क है कि आप एक सेक्टर चुन रहे हैं और एक थीम चुन रहे हैं। मान लीजिए एमएनसी वाली थीम चुन रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन की थीम चुन रहे हैं। और सेक्टर्स में है कि आपने चुन लिया कि मान लीजिए आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर चलेगा, आईटी सेक्टर चलेगा, तो आपने सेक्टर ले लिया। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। तो प्रीमियमाइजेशन थीम मतलब क्या होता है एंड उसमें कौन से स्टॉक्स होते हैं? हाँ, प्रीमियमाइजेशन थीम एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है इंडिया में हम एम कर रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी आज से 5 साल 10 साल में। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। अब आ जाके देखिए क्या हो रहा है इंडिया में। प्रीमियमाइजेशन एज अ ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गाड़ियां, एक स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा था कुछ टाइम पहले, हर तीसरी गाड़ी इंडिया में हैज अ सनरूफ। हम तो गरीब हम तो गर्म देश है, यूरोप का कॉन्सेप्ट है, फिर भी हमारे पास एक सनरूफ हमारी। तो ये लॉजिक क्या है? टॉप मॉडल खरीदे जा रहे हैं गाड़ियों के। आप जाके देखिए ऑर्गेनिक्स, जो आजकल हर चीज में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिक रहा है, वो 3 से 4 गुना के रेट होते हैं। तो प्रीमियम सेगमेंट हर जगह बढ़ रहा है। और देखिए बेनिफिट क्या है, इसको प्ले करने का 2 तरीका है। एक आप वो कंपनीज लीजिए जो प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती हैं। एक और तरीका है कि आप वो, क्योंकि जो सेम कंपनीज हैं वो ब्रांड्स लॉन्च करेंगी अपने अंदर ही। फॉर एग्जांपल रिलैक्सो है, एक कंपनी ले लेते हैं, वो एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड लॉन्च करती है। ठीक है, प्रीमियम सेगमेंट में फायदा ये होता है कि आपके नेट प्रॉफिट या मैं कहूं बॉटम लाइन ऐड करता है। क्योंकि आप एक एक लाइन है जी कि हम हायर द प्राइस हायर द वैल्यू परसीव करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पैसा ज्यादा देना चाह रहे हैं तो उस पर ज्यादा मार्जिन मिलता है इन कंपनीज को। कोई भी सस्ते कोई भी 40 रुपए का अगर कोई आधे लीटर का दूध मिलता है उसमें ज्यादा कमाई नहीं होती है।
कमाई होती है वो मिष्टी दही में, कोई भी ब्रांड में, या कोई जो प्रीमियम दूध बिक रहा है कोई कंपनी, वहां कमाई है कंपनी को। तो जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट बेचेगा वो हेल्प इट विल ऐड टू द मार्जिन ऑफ अ कंपनी, और से बॉटम लाइन बेटर होना शुरू हो जाएगी। तो प्रीमियमाइजेशन एज अ ट्रेंड आप इंडिया में देखिए बहुत चल रहा है, और एज एन इन्वेस्टर आपको उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये और बढ़ता जाए। बात करते हैं सेक्टर्स की, हम सेक्टर्स की बात कर रहे थे, दो तीन सेक्टर्स लेते हैं। अ, मेरा तरीका बहुत सिंपल है। आई ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। बहुत तरीके हैं, आजकल तो स्क्रीनर की एप्स हैं, आजकल एआई प्रॉम्प्ट्स इतने अच्छे हो गए हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप इट्स बिकम ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट कंपनीज इन सेक्टर। बट स्टार्ट पॉइंट मुझे लगता है हमेशा ना थोड़ा आप देखिए अपने अराउंड क्या चल रहा है। मैं नहीं भी करते करते महीने की कितनी 100 न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आई यूज लॉट ऑफ एआई टूल्स फॉर दैट। एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक व्यूअर्स को हेल्प मिलेगा। एक नोटबुक एलएम करके काफी हेल्पफुल है। एक साथ 15 मिनट में पॉडकास्ट बना देती है चीजों की। परप्लेक्सिटी है, उसका फाइनेंस का पूरा एक पेज है, कॉमेट का ब्राउजर है, ये सब काफी हेल्प करते हैं जी मुझे डेसिमेट करने के लिए कि कैसे द इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। नाउ हाउ डू आई डू इट? एक एग्जांपल लेता हूँ। जीएसटी का रेट कम हुआ, सबसे ज्यादा किस बेनिफिट हुआ, किन को बेनिफिट हुआ? ऑटो को। सबसे ज्यादा फायदा हुआ ऑटो को, नंबर्स में दिख रहे हैं। 8 पे कमीशन सरकार ने बोल दिया आने वाला है, हो गया, पक्का हो गया, लागू हो चुका है 1 जनवरी से 2026 से। पैसा आएगा 15 से 18 महीने में। जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? आप सोचिए, इतना पैसा तो आएगा नहीं कि घर ले लें। नेक्स्ट थिंग टू मेक देम हैप्पी, टू पुट अ लम्प सम अमाउंट एनीवेयर, ईदर आईफोन और अ कार। तो गाड़ियां डी फैक्टो बेनिफिट बन जाती हैं। मैं आपको एक और नंबर देता हूं। मारुति का मार्केट शेयर है इंडिया में 41% है, एज ऑफ लेटेस्ट 41% है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मारुति इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी, अप्रैल 2026 में नया प्लांट ऑपरेशन हो जाएगा। देखिए बैकलॉग ऑर्डर पड़ा हुआ है, माल कंपनी दे नहीं पा रही है। ऐसा कौन सा बिजनेस है? आप सोचिए, आज आपके पास फोन आ रहे हैं कस्टमर्स के, आप ऑर्डर दे नहीं पा रहे हैं, 6-6 महीने की लाइन लगी हुई। तो मैं कह रहा हूं ये नहीं कि मारुति बाय करिए, जाके देखिए सेक्टर कौन सा आपको पसंद है और उसमें कौन सी कंपनी सेक्टर से ज्यादा ग्रो कर रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं इसी सेगमेंट। तो पीवी की बात कर रहा हूं मैं, पैसेंजर व्हीकल्स, गाड़ियों की बात कर रहा हूं। इन सेक्टर में देखिए कौन सी कंपनियां ग्रो कर रही है, नई कंपनियां आ रही हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। रोज हम गाड़ियां देख रहे हैं, कौन सी गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे to observe around you and buy, figure out sectors and stocks. So one of those, I think, car and passenger vehicles can perform over the medium term. Short term अगर हम छोड़ दें क्योंकि अभी exports impact होगा due to wars, but medium term में कार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एक और मुझे एक्चुअली दो और सेक्टर जिसकी मैं बात करना चाहूंगा। एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखो, जो जैसे जैसे इंडिया फाइनेंशियलाइजेशन होगा, देखिए हम सब म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, हम सब आपको कहता नहीं म्यूचुअल फंड करिए, किसको बेनिफिट हो रहा है? आपको तो हो रहा है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है जो कंपनीज जो दे रही हैं। आप देखिए कौन सी कंपनीज हैं, अ, कौन से सेक्टर्स हैं, देखिए उनमें फाइंड करिए कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी। जब फाइनेंशियलाइजेशन होगी, आपका पैसा ज्यादातर मार्केट की तरफ जाएगा फ्रॉम एफडी, सो कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होगा? एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, करेक्ट, उनमें कुछ डुओपोलीज हैं, कुछ मोनोपोलीज हैं। तो मोनोपोली वो होता है जब एक कंपनी होगी राजा बनी हुई है, यानी कि 100% शेयर है, मैं कहता हूं 70-80% शेयर है, काफी बड़ा स्टेक है। दूसरा होती है डुओपोली, दो कंपनीज है, तीन कंपनी है मार्केट में, और उनके पास मोट है, मतलब जल्दी वो किसी को आने नहीं देंगे अपने मार्केट में, क्योंकि एंट्री बैरियर है। तो ऐसी कंपनीज बहुत अच्छा मौका देती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी वन सेक्टर व्हिच कैन रियली परफॉर्म वेल ओवर द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉर इंडियन। एक और बात करते हैं, एक सेक्टर जो मुझे अगेन वेरी क्लोज, व्हिच आई हैव रिसेंटली नोटिस्ड, अगेन आई लाइक टू इन्वेस्ट लाइक दैट। कुशल, आप मुझे बताइए, रिसेंटली आप कहाँ गए थे घूमने? कहीं गए घूमने? दुबई। कब गए? नवंबर। आप पिछले 1 साल में कितनी बार घूमने गए हैं? 3 बार 4 बार। मेरे ज़माने में जब मैं स्टार्ट करा था, तो उस समय सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था समर वेकेशन का। अब लोग 3 से 4 बार, तो आप घूमने गए हैं, वर्क ट्रिप की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अलग। आप साल में 3 से 4 बार घूम रहे हैं। ऐसे लोग हर 2 से 3 महीने में घूम रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी एज अ ट्रेंड, ट्रैवल एज अ ट्रेंड इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी फास्ट। तो 3-4 वेज है आप इसको प्ले कर सकते हैं। एक, होटल्स। इंडिया में मुझे 5-7 हजार रुपए में ताज का होटल का रूम मिल जाता था। आज कोई 10-12-15 हजार से कम करने को बात ही नहीं, और फुल पड़े हुए हैं। रेट बढ़ते जा रहे हैं, न्यू कैपेसिटी ऐड करते जा रहे हैं, स्टेट बेनिफिट मिल रहा है। एक तो होटल्स एक अच्छा सेगमेंट बन सकता है। दूसरा, फ्लाइट्स। इंडिया में एक दो ही कंपनी है जो कि अच्छा काम कर रही है इसमें,
एंड अगेन शॉर्ट टर्म में काफी पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ 30-40% का ऑपरेशन कॉस्ट ऑयल से आता है, तो शॉर्ट टर्म में काफी पेन हो सकता है, बट अगेन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये चीज एक एंगल दिखा सकता है टू प्ले दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तीसरा है ट्रैवल कंपनीज एंड चौथा है ट्रैवल इक्विपमेंट्स, लगेजेस, बैग्स। ट्रैवल करते हैं, अच्छा देखिए आपके घर में कितने बैग्स होंगे, कितने ट्रैवल आजकल, अगेन उसमें भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है। पहले अच्छे खासे 1000-2000 रुपए में ट्रैवल बैग आते थे, आजकल देखिए आप कितनी सारी कंपनी हैं जिनके बैग कितने महंगे हो गए हैं, ठीक है, और प्रीमियम, उसमें भी हमारे पास एक नहीं 2-3 तो चाहिए चाहिए, अलग अलग कलर्स में चाहिए। So these are the trends which you can see that is really working out in the market. What you need to do? You need to find out good company sectors, companies which are going faster than the sector, and वो आपके multi baggers बन सकते हैं। So how do we find these multi-bagger stocks? And आपने जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की, तो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो पे आपका परसेंटेज सीएजीआर कितना रहा था? अ, देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैंने ना स्टॉक का अपने अगर कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरे कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और मैं उसकी बात भी करूंगा। एक मेरा एक स्टॉक है जिसने मुझे 24x रिटर्न दिया, कितने 24 टाइम? रिटर्न 4 साल में। ओके, कौन सा स्टॉक है? स्टॉक का नाम है, मैं आता हूँ स्टॉक के नाम पे, पहले बताता हूँ क्या लॉजिक था। वो एक डुओपोली है इंडियन मार्केट में, सबको उसका नाम पता है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको सबका नाम पता है। वो रोज अगर मार्केट फॉलो करते तो स्टॉक को देखते देखते हैं, गारंटी है, ठीक है। एक करके आते हैं, वो कंपनी ओनली लिस्टेड कंपनी है उस मार्केट में, गेस कर पाए? अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन से एक्सचेंज में जाते हैं, बीएससी या एनएससी? एनएससी लिस्टेड है नहीं तो बचा बीएससी, बीएससी मेरा स्टॉक। बीएससी का बाइंग प्राइस मेरा आफ्टर एडजस्टिंग द बोनस ऑफ 2022 इज 139 रुपीज। मार्केट गिरी है, ऊपर हुआ नीचे हुआ, वॉर हुआ, आज जाके देख लीजिए कुछ 3000 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। वाओ। सो कुछ 22 से 23 गुना मुझे इसमें नफा हुआ। बहुत ही सिंपल तरीका था जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने बीएससी कैसे सेलेक्ट करा। मैंने बहुत ज्यादा इसके फंडामेंटल्स में बिल्कुल गया, बट मैंने बहुत ज्यादा नमक क्रंचिंग नहीं की। एक कंपनी है जो इतनी छोटी है, बाकी दूसरी बड़ी है, एनएससी इतनी बड़ी है, जरा सा इसका मार्केट शेयर बढ़ता है तो ये डबल ट्रिपल हो जाती है। पहली चीज, ऐसी कंपनियों में जो कि एसेट लाइट होती है, इनके पास कोई, इनको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी में। एक बार ये कंपनी इन्वेस्ट हो गई, उसका इनका प्ले करता है ऑपरेटिंग लेवरेज। कोविड इनके लिए इतना बेनिफिशियल था ना। कोविड के बाद क्या हुआ, सब ट्रेडर बन गए। कोविड के बाद एवरीबडी बिकेम अ ट्रेडर, मार्केट ऊपर चढ़ी, सब ट्रेडर बन गए। बहुत तेजी से ग्रो किया डेरिवेटिव सेगमेंट। या तो आप ट्रेडिंग कर लेते या आप बीएससी खरीद लेते। जिन्होंने बीएससी खरीदा उनकी लॉटरी लग गई। जैसे ही ये ट्रेड करना शुरू करा, इनका तो सेम फिक्स कॉस्ट था जी, टेक्नोलॉजी बन चुकी है, कोई उनको तो नई फैक्ट्री लगाने नहीं है, स्केलेबल मॉडल है, डिजिटल है। जैसे से लोग आते गए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2005 पिछले 5 साल में इसका रेवेन्यू 2.5 गुना बढ़ा है। एंड यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई टेल यू प्रॉफिट कितना बना है, 10x, 70-80 करोड़ से 800 करोड़ पे आ गया। तो देखिए रेवेन्यू 2.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज वेंट अप टू, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कि आपका फिक्स कॉस्ट उतना ही है, एंड बिकॉज आपने फिक्स कॉस्ट उतना है, बाकी जो भी आ रहा है आपके मेजर पोर्शन आपका बॉटम लाइन या प्रॉफिट में आ रहा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग फाइंड था मेरे लिए। देखिए हमेशा मल्टी बैगर में एक प्रॉब्लम होती है, यार कम लिया। सारे मल्टी बैगर में ये प्रॉब्लम है, जब मल्टी बैगर बन जाता है ना तो यार कम लिया, बाकी पैसा कहाँ लगा था यहीं डाल देते। तो मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी कर लिया था जब ये आधा बढ़ा था, ताकि थोड़ा मेरा कॉस्ट पूरा हो जाए, थोड़ा कमाई अच्छी लगती है, प्रॉफिट आता है तो अच्छा लगता है। बट आई स्टिल होल्ड इट, बट आई विल से दैट इट्स नॉट चीप एनीमोर। 138 का भाव, 140 का भाव लिया हुआ, आज 3000 है। It's not cheap anymore. So I would not say people dive into BSC today. There are multiple BSCs in the market. People need to see that कि क्या चल रहा है। तो देखिए डुओपोली ढूंढिए, मोनोपोली ढूंढिए, ऐसी बहुत सारी हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, न्यू एज कंपनीज हैं जहां पे ऐसा हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटी है। और वहां देखिए कि क्या मोट है और कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकती है, तो वो आपका सेक्टर और फिर आपकी वो कंपनीज। कौन सी न्यू एज ई कॉमर्स कंपनीज आपको लग रहा है कि अच्छी कर सकती है, कहाँ पे मोड से? देखिए बिना नाम लिए बताता हूँ आपको मैं, आप भी समझदार है, ऑडियंस भी समझदार है, वो समझ जाएंगी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में वो चीजें यूज करते हैं।
दो चार कंपनियां उस सेक्टर में, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि न्यू रूल्स आए थे सेबी के कि आईपीओस लॉस मेकिंग कंपनीज में निकाल सकती है, तो प्रॉफिटेबल है। मुझे लगता है जैसे ही वो प्रॉफिटेबल होगी तो काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आई थिंक ये तीन क्यों चार हिंट्स हैं। क्यों नहीं, बट इसमें समझ नहीं आया, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू यू थिंक दे विल बी एबल टू बिकम, दे विल बी एबल टू जनरेट रिटर्न्स? देखिए मॉडल बहुत स्केलेबल है, ऑलमोस्ट डुओपोली है मार्केट में, तीन चार प्लेयर ही हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है नए प्लेयर को आना, स्टार्टिंग में बहुत बर्न करना पड़ता है, तो स्टैब्लिश बिजनेस है। सिमिलर कंपनी है सेम फील्ड में, जैसे ही उसने प्रॉफिट दिखाया था वो 5 से 8 गुना हो गए, ठीक है, मार्केट लीडर है। दूसरी जो कंपनी है सिमिलर स्केल में चल रही है, प्रॉफिटेबल होना शुरू हो, इट इज मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस मेकिंग बिजनेसेस बंद करना शुरू कर दिए उसने, ठीक है, और स्केल कर रही है। जैसे ही प्रॉफिट आएगा बिकॉज ऑफ बेटर एफिशिएंसीज इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट टर्न होते ही देखिए, one thing that the market loves and one thing that market loves cash flow and profit, and market hates any fraud। तो ये दो चीजें हो रही हैं, कैश फ्लो और प्रॉफिट मार्केट को बहुत पसंद है, स्पेशली लॉस से प्रॉफिट आ रहा हो तो बहुत अच्छा होता है। कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर रही है तो कंपनी कुछ भी कर सकती है पैसे से, और जहां फ्रॉड आ जाए उस कंपनी से दूर भाग जाइए। और कौन से आपके बेस्ट बेट्स रहे स्टॉक्स में, एंड व्हाट, हाउ डिड यू पिक दोस स्टॉक्स? एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि एक सिंपल है, जो मुझे, अगेन सभी स्टॉक्स आपको 20 से 25 टाइम तो रिटर्न देंगे नहीं, ऐसा हो जाए तो मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यही करूं, ठीक है। बट एक स्टॉक जो मेरा चला और एक स्टॉक नहीं चला, दो बताता हूं ताकि इट बी इजियर फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। सो मार्केट में अभी फोन के कनेक्शन मेनली दो है, तीसरा जो है वो दो को मार्केट शेयर दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं जियो और एयरटेल की। जो तीसरा है वोडाफोन आइडिया, वो हर महीने पर महीने अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, और इट इज मार्केट शेयर गोइंग इधर टू जियो और भारतीय एयरटेल। मेरे में भारतीय एयरटेल कुछ 450 रुपए में लिया था, ये भी कुछ 4 साल पहले की बात होगी, 2000 रुपए के अराउंड वो भी ट्रेड कर रहा था। इतना बड़ा स्टॉक 450 से 2000 रुपए आ गया। देखिए हम ढूंढते हैं वो माइक्रो कैप स्टॉक्स, वो स्मॉल कैप स्टॉक जब आपके सामने चीजें दिख रही होती है हम वो भूल जाते हैं। तो एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि भारतीय एयरटेल वाज एट अ वेरी गुड पोजीशन। देखिए भारतीय एयरटेल की यूनिक चीज क्या है, ज्यादा कस्टमर है जियो के पास, थोड़े से कम कस्टमर है एयरटेल के पास, मानते 1 करोड़ कस्टमर है। बट एक और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इज आरपू, ARPU इन दिस इंडस्ट्री। पहले 200-250 रुपए का टारगेट था एयरटेल का, अब वो है 350 रुपए का टारगेट। मतलब मैं कहता हूं 1 करोड़ लोग नहीं आते एयरटेल के पास, और लोग ठीक है तो आएंगी, बट मैं कहता हूं 1 करोड़ पे स्टैग्नेंट हो गया। 1 करोड़ कनेक्शन दिए हैं भारतीय एयरटेल के, और नहीं वो बेच रहा या बिक नहीं रहे उसके। और पहले 250 रुपए पर पर्सन दे रहा था, अब वो 350 रुपए पर पर्सन हो जाएगा। तो देखिए कैसे दो तरह से वैल्यू बढ़ रही है फॉर अ कंपनी लाइक भारती। एंड भारती में प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं, भारती में हाई पेइंग कस्टमर्स हैं। वोडाफोन में आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो कम होगा, एंड सिमिलरली फॉर जियो। बट फॉर भारती एयरटेल, बिकॉज people have postpaid plans, people have other value added services, and लोग एक्स्ट्रा पैसा यहाँ देते हैं, and this directly helps the company. So 450 का शेयर कुछ 2000 रुपए हो गया in a matter of 4 years. Again, what 4.5 time, 5 time return, which is a very decent return for a big stock. बट इवन इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस, तो रिलायंस में भी आई थिंक अगर आप 2020-21 में इन्वेस्ट करते तो तभी भी आपको उससे ज़्यादा, एयरटेल से ज़्यादा रिलायंस में भी रिटर्न मिल ही सकता था, राइट? हाँ, बट रिलायंस जो है वो एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। इट इज नो मोर एन ऑयल एंड गैस कंपनी, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट नाउ। व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन रिलायंस, देयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नथिंग हैपेंस, देन आई एम नॉट सेइंग, मैं तो कहता हूँ दोनों लीजिए ना, इतनी बड़ी कंपनीज है। रिलायंस, अब आप रिलायंस को सिर्फ आपको जियो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रिलायंस में तो बहुत कुछ है। रिलायंस मेनली रिटेल प्ले हो चुका है, राइट। रिलायंस इज डाइवर्सिफाइंग, उसको दिख गया है कि ऑयल एंड गैस से दुनिया अलग हो रही है, सो इट इज डाइवर्सिफाइंग। तो आपको डिपेंड करता है आप कौन सा सेक्टर चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलायंस इज जस्ट नॉट जियो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है जियो में तो एक अलग कंपनी बनेगी, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिलायंस डज नॉट ओनली, रिलायंस हैज अ लॉट ऑफ कंपनीज। बट व्हाट अबाउट लेट्स से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो अलग ही एएमसी, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर, तो उसमें आपको लगता है कि दैट इज अ गुड प्ले? देखिए मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं जाना चाहूंगा अभी, बट कुछ ऐसे इट अगेन कम्स इनटू माय फाइनेंशियलाइजेशन थीम। सो अगर इंडिया फाइनेंशियलाइज करेगा तो बिना बैंक्स, बिना एनबीएफसीज, बिना सीनियर एएमसीज के आगे बढ़ के
नहीं हो सकता है. तो it fits into that theme, but I think we should refrain from talking because प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए मैं स्टॉक्स बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जियो बाय करना नहीं करना, बट प्रॉब्लम ये होता है कि एंटर करने का टाइम और एग्जिट करने का टाइम भी बताना पड़ेगा फिर, और एग्जिट करने का टाइम मुझे आज पता नहीं है. तो लोग करेंगे जी ले लिया, 6 महीने कुछ नहीं हुआ, वो निकल जाएंगे. तो एग्जिट करने का टाइम, तो इसलिए फॉर एवरी इन्वेस्टर हैज अ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, और हर तरीके का इन्वेस्टर अलग है. तो स्टॉक और म्यूचुअल फंड बताना नाम के हिसाब से प्रॉब्लम हो जाता है. Got it, fair. And lastly, like, what is one quote or what is one thing that always keeps you motivated or driven whenever you are like working in day-to-day life? I'm inspired by Warren Buffett, who says that the rule number one should be the need to protect or conserve the capital, and the rule number two should be you should follow rule number one. So that helps me कि यार पहले अपना पैसा बचाओ. तभी मेरी फिलॉसफी थी कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड मत शुरू करो, थोड़ा पैसा बना लो. पैसा बचाना जरूरी है, कम कमा लो चलेगा, बट अपना पैसा बचाओ. Right. And last question, which is a tricky one, which I ask all my guests. So if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Vinny Arora, what is one question you would like to ask him towards the end? How much is too much money? How much is too much money? I think there is no number which is too much for anybody. It is different from everybody. For you, it might be 5 crore. For me, it might be 2 crore. It depends on person to person. किसको कितने आईफोन खरीदने हैं, किसको कितनी मर्सिडीज खरीदनी है, कौन किससे खुश हो रहा है. आई थिंक इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी पैसा कमा लीजिए, खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो अपना सीलिंग देख लीजिए, क्योंकि वो गोल्ड पोस्ट चेंज होते रहते हैं. ये मैंने लाइफ में देख लिया है, वो गोल्ड पोस्ट चेंज होते रहते हैं. Amazing. Thank you so much for doing this super insightful conversation. बहुत सीखने मिला about mutual fund stocks and all, and people have gotten to know like how they can also become financially independent and also. Thank you so much for doing this and wish you all the best for all your future endeavors. Thank you, Kushal. Thank you for having me. It was a wonderful experience. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.